नमस्कार दोस्तों। आज से हम क्या करेंगे? यूपीएससी सीएससी सी सेट को प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। यू मे बी नोइंग इन द लास्ट 2 to 3 years यूपीएससी सी सेट has become really difficult, and it has become even more challenging than the general study paper. Why? Because many people are failing to clear CSAT, but they are scoring very good marks. I mean, above the cutoff marks. But because of they are not able to clear the CSAT, their name doesn't appear in the prelim list. Okay, prelim qualified list. So, what is the best way forward to tackle this CSAT? So, you may be of any background. Okay, you may be of any background. You may be of engineering, or maybe of science stream, or maybe of arts. It doesn't matter. What it matters, if you are trying to give half an hour a day and try to practice the previous year questions, then you will get lot of insights, and you will be in a very comfortable situation to clear CSAT. So what we are trying to do in this series, we are trying to deal with arithmetic first. Suppose you are a arts background student, you do not have much background over mathematics, or let us say arithmetic. What I will try to do, I will try to take up previous year question. It may not be in any order. Whatever fall in the category of arithmetic, I will take up them one by one, basically year wise, and I will try to solve them in a very simplistic way. Okay. It may not require that you are having very good formula based or mathematical understanding. I will try to explain them in a very simple way, like the 10th class or the particular high school level language. So even if you have forgotten all the concept of mathematics, it doesn't matter, because I will break down the question into a common man perspective. Because what UPSC is asking, though nowadays they are asking very tough question like CSAT, that qualities like can be matched to, some people are saying it is matched up to the quality of IIT JEE, or let us say for CAT. But let aside these things apart. Okay, let us try to do as much problem as possible and try to gain confidence through solving only previous year questions. By repeating this, by when you practice repeatedly these questions, more or less same pattern or same theme is going to repeated for sure. Because see, these themes are very well defined, and these are the only thing that is going to come only. So instead of mugging formula, instead of spending huge amount of money in special CSAT courses offered by many institute, or reading very bulky book, okay, and solving so much a problem but not able to do it in the exam. So what I'll try to do, I will take a question and try to solve it in front of you in a very detailed way. I will not take any shortcut. I'll solve each and every option, and I'll try to show you how you could have done it if you were to appear in the exam situation. Okay, so let us begin. This is a platform called Sikhya. It is a completely non-for-profit platform. The basic aim of this platform is to share learning experience so that whoever needs, they will have a access to this kind of education. So we'll be taking up arithmetics. Every day we'll try to solve 5 questions. So let us start 5 questions. I'm going from 2020 onwards because this is what available with me right now. So don't think from 2020 to 2024 I'm not going to solve. Definitely from the next class onward I will going to solve them also. Since I got hold of it very what you called easily. So just I started from this 2020 year onwards. No specific reason for this. Okay. So let us solve. What is the first question it is saying? What is the largest number among the following? Now in this case, as you see, there are 4 options. Okay. इसमें क्या पूछ रहा है? Which among them is the largest? तो आपको क्या करना है? ये सब जो दिया है ना, उसको सॉल्व करके उसको नंबर के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। उसके बाद देखना है कि कौन सा लार्जेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? 1/2, इट्स ए फ्रैक्शन,
उसका कुछ पावर दिया है, ओके, उसका पावर कितना है -6। आपको डरना नहीं है, मैं जैसे जैसे आपको करते जाऊंगा ना, आप बस ऑब्जर्व करते रहना, ओके, जस्ट ऑब्जर्व मी, ओके, स्टेप बाय स्टेप आई विल गो। सी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, आई कैन राइट 1 पावर -6 डिवाइडेड बाई 2 पावर -6। ये इंडिसेस होता है ना, उसका रूल होता है। मतलब अगर कोई भी ऐसा फ्रैक्शन का दिया हुआ है ना पावर, लेट अस से a/b⁴ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a⁴ b⁴ लिख सकते हैं, ठीक है। m कुछ भी हो, इंटीजर हो, मतलब पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसको मैंने वही किया, 1/2 का होल पावर दिया था ना, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को पावर कर दिया -6 और डिनोमिनेटर का पावर भी कर दिया -6, ठीक है। अभी आपको एक एक रूल पता होना चाहिए, अगर कहीं पे a⁻m लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1/a⁻m। इसका मतलब अगर माइनस है, आपको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव को, तो आपको क्या करना है, 1/a⁻m लिखना है। कन्वर्सली अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 1/a⁻m, आपको उसको न्यूमरेटर को लाना है, ऊपर लाना है, तो क्या करोगे, ए पावर, ये प्लस है ना, ऊपर जाएगा तो -m हो जाएगा। इतना बस आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्या करना है, तो ये 1 पावर -6 है, तो अगर इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा क्या हो जाएगा, 1/1 पावर+6, ओके। इसके बाद देखो ये 2 पावर -6 है, तो इसे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पावर+6 हो जाएगा। अभी मैंने बताया क्या है कि अगर ऐसा है, उसको नीचे लाना है, पॉजिटिव करना है, तो वन वन डिवाइडेड बाई a⁻m हो जाएगा। समझ गए। अगर ऐसा लिखा हुआ है 1/a⁻m लिखा हुआ है, तो उसको ऊपर लेना है, तो a⁻m हो जाएगा। इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो ये कितना हो जाएगा, 2⁻6/1 पावर 6। मैंने ब्रैकेट को खोल दिया क्योंकि अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सब पॉजिटिव हो गया ना। 2 का पावर 6 क्या होता है, 2 को 6 बार गुणना होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 हो गया, 3 3 6। इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है a⁻n, इसका मतलब क्या है, आपको a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, a × a अप टू क्या, n टाइम्स, यही कॉन्सेप्ट है। तो मान लो 2 पर 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2 × 2 है। जो कोई बैकग्राउंड आर्ट से है, कभी डरना नहीं है, मैं जैसे समझा रहा हूँ वो समझ लेना, ठीक है। अगर लिखा है 2 पावर 3, इसका मतलब क्या है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2। तो 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 2 32 × 2 64। अभी यहाँ पे देखो 1 का पावर 6 है, इसका मतलब 1 को 6 बार गिनना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, 3 4 5 6। One, if you are multiplying one n number of time also, that will become one. 1 × 1, 1 × 1, 1 1 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 64। अभी आपने ऑप्शन ए को सॉल्व कर दिया, तो इसके वैल्यू हो गया 64। अभी ऑप्शन बी को जाना है। ऑप्शन बी में क्या था, 1/4 टू द पावर -3। अभी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसको, 1 पावर -3 4 टू द पावर -3। इसको कैसे लिखूंगा, 1 पावर 3, इसको कैसे लिखूंगा, 4 पावर+3। ऐसे लिख लूंगा ना, 4 पावर 3/1 पावर 3। सो 4 × 4 × 4, ओके। 1 पावर 3 मतलब 1 हो गया ना, तो सिर्फ कितना बचा, 4 पावर 3, 4 × 4 × 4 कितना हो जाएगा, 64 हो गया। इजी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, सी में क्या दिया है, 1 पावर 3 टू द पावर -4। डायरेक्टली लिख सकता हूँ, 1 पावर -4, 3 पावर -4, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब 1 होता है। 3 टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है, यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 81। अभी डी कितना है, 1 पावर 6, मतलब 1/6 पावर -2। इसका मतलब 1 पावर -2, 6 पावर -2, 6 पावर -2 ऊपर जाएगा तो 6 पावर 2, 1 पावर -2 नीचे आएगा तो 1 पावर 2, कितना हो जाएगा, 6 × 6 36। तो अभी बताओ कौन सा लार्जेस्ट है, ये 36 है, ये 81 है, ये 64 है, ऊपर वाला भी 64 था, है ना, ये 64 था। तो सबसे लार्जेस्ट क्या हो गया, 81 हो गया। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, सी हो गया। स्मॉलेस्ट पूछता तो कितना होता, 36, ये है स्मॉलेस्ट, ये हो गया लार्जेस्ट, ये हो गया स्मॉलेस्ट। समझ गए ना आप, इसका मतलब हमारा आंसर हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया आपका लार्जेस्ट। क्लियर, ओके। इजी है। आपको अगर मतलब इफ यू आर
not remembering also this indices and sorts and all, no need to worry, I will explain it here itself, just you have to listen. अभी देखो, ये डेली लाइफ का सिनेरियो है। यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है ना, काफी इंटरेस्टिंग पूछता है, मतलब जो डेली लाइफ में आप एनकाउंटर करते हो, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो। होता क्या है ना, एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर में रहते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, देखते कि यार ये क्या डिस्काउंट परसेंटेज है, इतना लंबा लंबा है, उसको छोड़ ही देते हैं। छोड़ना नहीं है, लेकिन पढ़ना है, उसको ब्रेक करना है। आप अगर पीसफुली आपके घर पे इस क्वेश्चन को पढ़ के करोगे ना, आप कर पाओगे। लेकिन एग्जाम हॉल में से हो नहीं पाता है, क्योंकि इतना प्रेशर होता है। ओके, आप देखोगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, ये परसेंटेज आ गया, डिस्काउंट आ गया, ये क्या क्या है। कुछ नहीं है, बस पढ़ो। क्या लिखा है, ए शॉप ओनर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शन ऑन एन आर्टिकल टू ए कस्टमर। मतलब कि शॉप ओनर है, वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है एक आर्टिकल के ऊपर। मान लो कोई एक, कोई भी एक पेन है, ठीक है, पेन के ऊपर वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। चार ऑप्शन दिया है कि पहले क्या करेगा, सक्सेसिव डिस्काउंट देगा 10% और 20% का, उसके बाद पे करना है सर्विस टैक्स ऑफ 10%। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%, मतलब पहले 10% दे रहा है, उसके बाद 20%। यहाँ पे क्या है, पहले 20% देगा, उसके बाद 10% देगा, उसके बाद आपको 10% सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा। तीसरे केस में क्या है कि आपको पहले सर्विस टैक्स 10% देना है उस जो भी आर्टिकल आप खरीद रहे हो, वट एवर आर्टिकल यू आर गोइंग टू बाय, देन यू हैव टू पे सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 10%। तो अभी क्या बता रहा है, इन तीन ऑप्शन में कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, विच इज द बेस्ट ऑप्शन। डोंट यू थिंक दिस काइंड ऑफ सिनेरियो यू आर फेसिंग एवरी डे इन योर लाइफ। सपोज यू आर गोइंग फॉर, लेट अस से, बाइंग समथिंग फ्रॉम ए शॉप, ओके। मान लो जहां पे बार्गेनिंग वाला जो मार्केट जाते हो ना, वहां पे आप इस टाइप का चीज देखते हो, तो मान ले कस्टमर कस्टमर आप हो, और शॉप शॉप ओनर जो है ना आपको इस टाइप का ऑप्शन दे रहा है। तो आप कैसे जज करोगे कि आपको वो मतलब धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आपको मतलब मैथमेटिक्स आना चाहिए ना, तो इसीलिए सबको मैथमेटिक्स पढ़ना जरूर चाहिए। तो अभी इसको कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, देखो कैसे करेंगे। मान लो जो भी आर्टिकल है उसका एमआरपी क्या है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, लेट्स 100 रुपीज है। आप कोई भी, लेटर से आप कोई पेन, मैंने बोला ना पेन खरीद रहे हो, उसके ऊपर एमआरपी 100 रुपये लिखा है। अभी केस वन में क्या बोल रहा है, पहले क्या करेगा, 10% डिस्काउंट देगा, राइट। उसके बाद क्या करेगा, 20% डिस्काउंट देगा। उसके बाद आपको 10% सर्विस टैक्स पे करना है। तो एक बाय वन बाय वन देखते हैं। जैसे ही 10% डिस्काउंट हो जाएगा, इसका मतलब प्राइस अब कितना हो जाएगा, पेन का प्राइस प्राइस कितना हो जाएगा बताओ। मतलब 100 था एमआरपी, तो 10% डिस्काउंट कर दिया, मतलब डिस्काउंट मतलब क्या होता है, पहले आपको घटा के देगा ना वो। आपको डिस्काउंट दे रहा है, मतलब उस आपको कम दाम में मिलेगा। कितना कम दाम मिलेगा, 10%। किसके ऊपर 10%, एमआरपी के ऊपर 10% देगा। तो 100 का 10%, 100 का 10%। इसको सॉल्व करो। 100 माइनस 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, राइट। मैथमेटिकली भी देखो 10% मतलब क्या होता है, 10/100 है। तो 100 100 कट गया, बचा 10, ओके। सो 100 माइनस 10, तो कितना हो गया, अभी 90 हो गया, ओके। अभी 90। फिर आपने बार्गेन किया, बोला भाई और दे दो डिस्काउंट, बोला चलो ठीक है, मैं तो आपको 20% और डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो आप फिर खुश हो गए। तो फिर आपका प्राइस कितना हो जाएगा, अभी 90 तक आप पहुंचे थे ना बार्गेन करके, 90 के ऊपर देना है। यहाँ पे देखो ट्रिक है, हम क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं ना, वी हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। अब वो बोला है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% 20%। इसका मतलब क्या है कि पहले 10% देगा, देन वट एवर वैल्यू कम्स आफ्टर द डिस्काउंट, उसके ऊपर फिर 20% देगा। अभी डिस्काउंट के बाद 90 रुपये है, उसके ऊपर फिर 20% देगा। इसका मतलब क्या है, 90 के ऊपर 20% फिर से डिस्काउंट देगा, मतलब आई विल गेट लेस प्राइस, फर्दर लेस प्राइस। तो 90 माइनस 90 इंटू 20/100। तो यहाँ पे जीरो कट गया, यहाँ पे जीरो कट गया। 9 इंटू 2 18, 90 माइनस 18 मतलब क्या हो जाएगा आपका, 72 हो गया। तो आपने बार्गेन कर लिया। तो फिर दुकानदार ने बोला, शॉपकीपर ने बोला, भाई आपको सर्विस टैक्स भी पे करना है, 10% सर्विस टैक्स तो पे करके जाओ। तो फिर फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा बताओ, फाइनल प्राइस 72 के ऊपर आपको देना है। यहाँ पे घटा रहा था, सब्ट्रैक्ट कर रहा था, क्यों, डिस्काउंट था। यहाँ पे आपको देना है तो मतलब प्लस होगा, 72 का 10%। आसान है ना, तो समझना है। 70 इंटू 10/100, जीरो जीरो कट गया। 72 प्लस 72/100 मतलब क्या होता है, 72/100, सॉरी 10, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 72 प्लस 7.2, ओके। यहाँ पे एक जीरो कट गया था, ठीक है। तो 72/10, 72/10 मतलब 7.2, मतलब 79.2 हो जाएगा। तो आपको फाइनल प्राइस कितने में मिलेगा, ऑप्शन ए में
79.2 में मिल जाएगा आपको। बढ़िया है, चलो आप खुश हो गए। फिर से बोला कि यार चलो दूसरे केस में ट्राई करते हैं, मतलब आपको वो उसने ऑप्शन दे दिया तो आपको फिर इवैल्यूएट करना है। तो उसमें क्या है कि उल्टा कर दिया, मतलब फर्स्ट क्या करेगा वो 20% डिस्काउंट देगा, तो वो आपका फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा 100 माइनस 100 के ऊपर 20% देगा ना, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 100 इंटू 20/100 कट गया, तो कितना हो जाएगा फाइनल प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस 20, 80 हो जाएगा। फिर सेकंड में क्या करेगा, फिर से देगा, फिर आपने बार्गेन किए 10% डिस्काउंट दिया, फिर से फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा 80 था, उसके ऊपर 10%, मतलब 10/100 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। 10 कट गया, ये हो जाएगा 8, तो 80 माइनस 8 कितना हो जाएगा पहले बताओ 72 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर आपको क्या पे करना पड़ेगा लास्ट में, फाइनल में फाइनल में आपको फिर से सर्विस टैक्स फिर से 10% देना है, तो आपका फाइनल प्राइस कितना बन जाएगा, उसके ऊपर एडिशन होगा ना, अभी ऐड करोगे 10% ऑफ 72, तो वही 72 प्लस 72 इंटू 10/100 सेम हो जाएगा 72 प्लस 7.2 79.2। अच्छा, तो दोनों केस में कोई अंतर नहीं है, बढ़िया है। तो आप इस्तेमाल कर रहे हो आपका नॉलेज। सी में क्या दिया है कि पहले आपको फर्स्ट आपको क्या करना है 10% का सर्विस टैक्स दे देना है। कस्टमर बोलता है कि मतलब दुकानदार बोला कि पहले आप टैक्स दे दो, तो चलो ठीक है दे दूंगा, तो मेरा फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा 100 रुपये था ना एमआरपी, उसके ऊपर मैं क्या करूंगा 10% टैक्स पहले दे दूंगा, चलो 10% दे दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा फाइनल प्राइस होगा 110। उसके बाद सेकंड में बोल रहा है कि आपने बार्गेन किया ना 20% डिस्काउंट दे रहा है वो, तो फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा अब 110 था, टैक्स के बाद डिस्काउंट हो गया मतलब माइनस करना है, इसके ऊपर 110 के ऊपर इंटू 20% मतलब 20/100, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये 0 0 कट गया 0 0 कट गया 110 माइनस 22, राइट। तो कितना आ जाएगा 110 माइनस 22 कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 88 बराबर। उसके बाद थर्ड के मतलब फिर आपने क्या किया बार्गेन किया, फिर से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ना, तो फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा, इसके ऊपर ही डिस्काउंट होगा तो माइनस होगा इंटू 10/100 मतलब 8.8, तो 88 माइनस 8.8 कितना हो जाएगा भैया, ये भी तो हो गया 79.2। तो आपने क्या देखा हो, व्हाट डिड यू सी कि इन ऑल ऑफ द केसेस, केस ए केस बी एंड केस सी, तीनों में जो फाइनल प्राइस से आ रहा है ना, जो तीन ऑप्शन उसने दिया है सब पेपर ने, सब में फाइनल प्राइस 79.2 आ रहा है, मतलब कस्टमर को बेस्ट ऑप्शन तीन है, कोई एक भी चूज कर ले। पहले केस में वो बोल रहा है कि पहले 10% देगा, उसके बाद 20% देगा, फिर आपको 10% का सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन में क्या था कि आप पहले 20% डिस्काउंट लो, उसके बाद फिर 10% डिस्काउंट लो, सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव मतलब वही होता है एक के बाद एक, उसके बाद आप 10% सर्विस टैक्स दे दो। थर्ड ऑप्शन में क्या था, पहले आप टैक्स पे कर दो, उसके बाद 20% डिस्काउंट ले लो, फिर आपने बार्गेन किया फिर 10% डिस्काउंट मिल गया। तो तीनों केस में क्या कि फाइनल प्राइस वही सेम रहेगा, हमने कैलकुलेट करके देखा। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है, 1 only is the best option for the customer, no. 2 is the only best option, no. 3 is the only best option, no. तो क्या है, all option are equally good for the customer। देखो, so this is what you have to do in the exam। मतलब देखो अब ठंडा दिमाग में करोगे ना हो जाता है चीजें, लेकिन इसी को ना आप एग्जाम हॉल पे करोगे ना, इतना आपको तो लग रहा है कि भाई इतना लंबा हो रहा है, नहीं ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ तो इसलिए इतना लंबा हो रहा है, लंबा होने का कोई चांस ही नहीं, आप बस कैलकुलेट करते जाओ, इजीली विल गेट द आंसर। समझ गए, मतलब इजी लग रहा है ना, इसमें कोई ज्यादा खेल नहीं है, बस आपको कूलली पढ़ना है, क्वेश्चन में ही आंसर हमेशा रहता है सीसैट में। लेकिन पढ़ने के लिए तो फिर टाइम चाहिए, फिर स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, फिर आप भागते हो क्वेश्चन ढूंढते हो, क्वेश्चन सही से पिक नहीं कर पाते हो, कौन सा मतलब कोई कुछ कुछ क्वेश्चन रियल डिफिकल्ट होता है, फिर आप उसमें फंस गए, वो टाइम लगता है, फिर आपको इजी वाला क्वेश्चन मतलब टाइम नहीं होता है, फिर आपको छोड़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन ए क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स, मतलब एक क्लास है, समझने के लिए कोशिश करो, एक क्लास है, क्लास में 3 ग्रुप है, एक ए, एक बी और एक हो गया सी। इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी, देन व्हाट हैपेंस टू द एवरेज वेट फॉर द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। चलो पहले समझ लेते हैं कि मान लो क्लास में, मान लो मेरे को पता नहीं कि टोटल एन नंबर ऑफ स्टूडेंट है, टोटल एन है,
तो क्लास का एवरेज वेट कितना होगा पहले बताओ। क्लास का एवरेज वेट, एन मतलब एन नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मान लो एन के बदले में 5 ले लिया, मतलब मान लो क्लास में या 10 ले लिया, क्लास में 10 स्टूडेंट है, तो क्लास का एवरेज वेट कितना होगा। तो आप क्या करोगे, मान लो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, सबका वेट ऐड करोगे ना, अब टू स्टूडेंट 10 का वेट ऐड करोगे, उसके बाद कितने में डिवाइड करोगे, 10 में, यही तो एवरेज है। एवरेज मतलब क्या है, टोटल वेट बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये होता है एवरेज, राइट। तो आपके पास मतलब आपके क्लास में मान लो 10 स्टूडेंट है, तो 10 स्टूडेंट का वेट को ऐड करोगे, उसके बाद ये आपको डिवाइड बाई 10, देन यू विल गेट द एवरेज वेट, ये होता है एवरेज का कॉन्सेप्ट। अभी इस क्लास में उसने क्या बताया कि मान लो इस क्लास में 3 ग्रुप है, मतलब वही 10 नंबर ऑफ पीपुल है, लेकिन उसमें क्या है कि 3 ग्रुप कर दिया। बहुत ही आसान है देखो, 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मान लो मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, मान लो एक ग्रुप में मैंने क्या किया, एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट को रखा है, ये मतलब ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, जनरल केस में बता सकता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू इजी होता है। मान लो टोटल 10 स्टूडेंट है ना क्लास में, मान लो एक ग्रुप में क्या है कि 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप ए। अब मान लो बी ग्रुप में 4 स्टूडेंट है, और सी ग्रुप में 3 स्टूडेंट है। उसने क्या बताया, एक ग्रुप से एक मेंबर सी ग्रुप को आ गया, तो अभी एक ग्रुप में कितना हो जाएगा, 3 थे, तो एक चला गया मतलब 2 हो गया। बी ग्रुप से सी ग्रुप को दो दो स्टूडेंट चले गए, मतलब 2 स्टूडेंट्स मूव्ड फ्रॉम बी ग्रुप टू सी ग्रुप। इसका मतलब क्या होगा, बी ग्रुप में कितना हो जाएगा, 4 थे, 2 चले गए तो 2 हो जाएगा। अभी सी ग्रुप में क्या होगा, सी ग्रुप में पहले 3 थे, देयर वर 3 स्टूडेंट्स, ए ग्रुप से एक आ गया और बी ग्रुप से 2 आ गया, तो सी ग्रुप का नंबर तो बढ़ गया, 3+1+4+2 6। अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन व्हाट हैपेंस टू द एवरेज वेट फॉर द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। भैया क्लास में वही 10 स्टूडेंट है, तुम कितना भी घुमाओ, अभी तो कहते में इस केस में कितना टोटल स्टूडेंट है, 2+2+6, 2+2 4, 4+6 10, अभी भी तो 10 स्टूडेंट है ना क्लास में, पहले भी 10 थे, मैंने बस इसको ग्रुप में डिवाइड कर लिया था। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आई हैव मूव्ड 1 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए टू ग्रुप सी, 2 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप बी टू ग्रुप सी, बट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रिमेन सेम। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है, वही स्टूडेंट है, तो उनका एवरेज वेट तो वही रहेगा ना जो पहले था, तो क्यों चेंज होगा। मतलब यूपीएससी देखो आपको कैसे बुद्धू बनाता है। तो क्या लिखा है, इट इंक्रीजेस, इट डिक्रीजेस, इट रिमेन्स सेम, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा, मतलब कितना वेग है देखो। कैन यू इमेजिन, इसका मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप अगर एग्जाम हॉल के प्रेशर में करोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्या है कि अगर आप पहले से प्रिपेयर होके जाओगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके जाओगे पीआईक्यू, आपको पता होगा कि यार क्वेश्चन कितना भी दिखे, कितना भी बड़ा दिखे, कितना भी कंफ्यूजिंग दिखे, इफ आई विल स्पेंड लिटिल बिट ऑफ टाइम इन ए कूल माइंड, कूल हेडेड माइंड, देन आई विल एबल टू डू इट फॉर श्योर। तो व्हाट इज द आंसर इन दिस केस, इट रिमेन्स सेम, दैट्स इट। Average weight of the class not going to be changed. If the question would have been what will happen to the average weight of the group, then this D option may be the correct. Why? Because we don't know what will happen, there is no such information for each group. क्योंकि when one student moves out of group A and 2 student group moves out of the group B, and there will be but more student in group C, then the average will change because your total number of student changes. Now when you have to calculate the average for a group A, then you cannot divide by 3, you have to divide by 2. Here you have to divide by 2, here you have to divide by 6. So here the average weight of each group will change, it may increase, it may decrease. Okay, so that we don't know, but here the question is asking what happens to the average weight for the student of the class. So just this word, the one word class, this defines the answer of the question, nothing else. अगर आपको ये समझ में आ जाए ना कि क्लास में तो वही बच्चे हैं जो थे पहले, अब मैं उनको कितना भी घुमाऊं, कितना भी चेंज करूं, क्लास में सेम बच्चे हैं तो उनका एवरेज सेम रहेगा, तो आंसर वही होगा। समझने के लिए कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इजी है, लेकिन समझने से इजी होता है, नहीं तो बिल्कुल इजी नहीं होता है, बहुत टफ होता है। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द सम ऑफ डिजिट इन द नंबर 10 10 पावर n+1 is 2। अच्छा, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर क्या है, मतलब मान लो कोई नंबर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या है, द सम ऑफ डिजिट इन द नंबर। डिजिट क्या होता है,
वन वन एक डिजिट है, टू एक डिजिट है, थ्री एक डिजिट है, फोर एक डिजिट है, फाइव एक डिजिट, इनका सम कितना होगा? समेशन का सिंबल है, सम कितना होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मतलब 3 6 10 15। फिर क्या हो जाएगा, मतलब इसका क्या हो गया, मतलब इसका जितना डिजिट है उसका सम 15 हो गया। यहाँ पे क्या बोला, मतलब एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मान लो यहाँ पे 123 होता तो क्या होता? सम ऑफ द डिजिट इज 6। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई नंबर है, मान लो 10n + 1 है। यहाँ पे बोल रहा है कि एन के वैल्यू ऐसा, मतलब व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एन, सो दैट यहाँ से जो नंबर निकलेगा ना, वट एवर नंबर विल कम, लेट अस से x, when you are going to add the digit of this number x, you will end up in 2। ओके, देखते हैं क्या होगा, ऑप्शन वाइज हम इवेलुएट करेंगे। पहले में क्या दिया है कि n 0 हो जाएगा। अगर n 0 होता है तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या है? नंबर 10n + 1, मतलब 10 पावर 0 + 1। 10 पावर 0 मतलब कोई भी नंबर का याद रखो, जो अगर पावर 0 है इसका मतलब 1 है। किसी भी नंबर का पावर 0 इजिकल टू 1 है, तो 10 पावर 0 इजिकल टू कितना, 1 है। 1 + 1 2 है। अच्छा, ये तो ट्रू हो रहा है। मतलब अगर n के वैल्यू 0 हो जाएगा तो 10 पावर n + 1 जो नंबर आएगा, उस नंबर का डिजिट का सम में निकालूंगा वो 2 हो जाएगा। तो ये तो होल्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं निकला हुआ है, यहाँ पे लिखा है ओनली। इसका मतलब बाकी ऑप्शन को मेरे को इवैल्यूएट करना है फॉर एनी होल नंबर n। अच्छा, होल नंबर फिर क्या होता है? ये तो बेसिक है, याद रखो होल नंबर क्या है। होल नंबर मतलब, होल नंबर इज ए सेट of all the numbers like 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिट। इसका मतलब जो भी नेचुरल नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5, वहां पे बस आपको जीरो को ऐड करना है, तब जाके इसको हम बोलते हैं होल नंबर। ओके, याद रखना होल नंबर क्या होता है। ओके, सो बोला कि एन का वैल्यू कोई भी होल नंबर हो, एन का वैल्यू कोई होल नंबर, मान लो एन का वैल्यू पहले, मतलब मैंने लिया एन का वैल्यू 1 है, तो नंबर कितना हो जाएगा? 10 पावर 1 + 1। 10 पावर 1 मतलब 10, 10 + 1 मतलब 10, 10 + 1 = 11, 11 मतलब 1 + 1 = 2। तो ट्रू है ना? सही सही बन रहा है ना? अच्छा, मैं मान लो एन के पावर 3 लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 10 पावर 3 + 1। 10 पावर 3 मतलब 1000 हो गया, 1000 + 1 मतलब 1001 हो गया। फिर सबका डिजिट क्या समेशन निकालूंगा, 1 + 0 + 0 + 1, तो कितना हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर एन कोई होल नंबर होता है, इफ एन इज ये एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर, तो ऑलवेज देयर विल बी 10 पावर n + 1। जो भी नंबर आएगा ना, उसका जो डिजिट होगा उसका समेशन हमेशा क्या होगा? 2 ही होगा। आप टेस्ट करके देखो, कितना भी बड़ा नंबर लेके देखो, क्योंकि हमेशा क्या है कि आप 10 के पावर लगो ना, तो ऐसे 0 0 0 ही आएगा, उसके बाद आप एक ऐड कर दोगे तो उसका मतलब लास्ट में ही, बीच में 0 हो जाएगा, लास्ट में एक रहेगा। और सबका डिजिट जो सम करोगे तो 0 का सम हमेशा 0 रहेगा, और ये फर्स्ट और लास्ट का हमेशा एक, 1 + 1 हमेशा 2 रहेगा। तो ये ट्रू हो गया। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं, सी में क्या दिया है। सी का ऑप्शन क्या दिया है, देखो। सी में दिया है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन ओनली, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव इंटीजर है। देखो, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव, तो जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये तो इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5। अच्छा, अभी हमने देख के आया कि अगर 10 पावर 5 लेते हैं, उसमें एक ऐड करते हैं, तो तभी भी हमेशा क्या होगा? सम ऑफ द डिजिट विल बी 2। तो ये भी ट्रू है, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है। हम वी हैव टू फाइंड द मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन। ओके, ओके, दिस ऑप्शन ऑल्सो ट्रू। ए भी ट्रू था, बी भी ट्रू था, लेकिन विच एवर ऑप्शन विल बी मोर ब्रॉड, मोर इंक्लूसिव, वही है आंसर। अभी नेक्स्ट में क्या दिया है, डी में ऑप्शन में क्या दिखाएगी, दैट एन फॉर एनी रियल नंबर एन। अच्छा, मतलब एन कोई रियल नंबर है, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस केस में क्या होगा, देखते हैं इस केस में क्या होगा, सॉल्व करते हैं। अच्छा, मान लो मैं एन को √2 ले लिया, ठीक है। रियल नंबर मतलब क्या होता है आपको पता है ना, इसमें हर जो भी रेशनल और इरेशनल दोनों रहेंगे। ओके, मान लो मैं इरेशनल नंबर √2 ले लिया, तो 10 पावर √2 + 1। अभी 10 पावर √2 मतलब उसका नंबर आपको पता है कितना होगा ना, इसका नंबर अगर आप निकालोगे ना कैलकुलेटर डाल के, तो आपको मिलेगा 3.622, मतलब बहुत बड़ा नंबर आएगा। उसमें आप एक ऐड करोगे, तो सारे डिजिट को जैसे भी आप ऐड करोगे, क्या भरोसा है कि भाई वो 2 होगा? तो मतलब यहाँ पे डाउट है। अब मान लो एन को मैंने ले लिया ऐसे 3/5 ले लिया, अब 10 पावर 3/5 + 1, अभी ये तो बहुत ही बड़ा नंबर आएगा, मतलब डेसिमल में आएगा, उसमें मैं एक ऐड करूंगा
मतलब ये क्या है कि ये कोई पैटर्न में फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे मेरे मेरे को डाउट है कि ये सबका अगर समेशन में करूँ, दो हो सकता है, दो हो भी नहीं सकता है। समझ गए ना आप? तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फिर क्या होगा, व्हेन n बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर। तो इस केस में हमेशा ही वैलिड होगा, इस केस में कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है। आपको यह पता होना चाहिए कि जितने भी होल नंबर है वो सब सारे रियल नंबर है, लेकिन सारे रियल नंबर होल नंबर तो नहीं हो सकते हैं। समझ गए ना? आपको वेन डायग्राम पता है, पहले क्या होता है, नेचुरल नंबर, उसके बाद होता है होल नंबर, उसके बाद होता है इंटीजर। बोले यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे सारे काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएंगे। उसके बाद होता है रेशनल, मतलब फ्रैक्शन वगैरह आ जाएंगे, 2/3 1/2 ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेपरेटली क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये सम ऑफ दिस टू इज रियल सेट। ओके, जो बड़ा वाला डायग्राम बनेगा ना, इसको बोलते हैं रियल सेट। ओके, तो आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे सुटेबल आंसर क्या होगा। मतलब एन के वैल्यू अगर होल नंबर होता है ना, तो हमेशा 10 पावर n+1 क्या होगा, उसका जो नंबर निकलेगा उसका सम ऑफ द डिजिट विल बी ऑलवेज 2। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कि मान लो, क्या क्या बोला है, ये सम ऑफ 2500 डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग एक्स वाई जेड इन द रेशियो 1/2:3 3/4:5/6। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम शेयर एंड मिनिमम शेयर? बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब आप तीन दोस्त हो, एक्स वाई जेड, आपके पास टोटल मनी है कितना, 2500 रुपये, 2500। ओके, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एमंग योर सेल्फ। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 1/2:3/4:5/6। तो अभी बोल रहा है कि अब मान लो एक्स को कुछ वैल्यू मिल जाएगा, वाई के कुछ वैल्यू मिल जाएगा, जेड को कुछ वैल्यू मिल जाएगा, शेयर मिल जाएगा ना। तो सबसे मैक्सिमम शेयर किसको मिला है और सबसे मिनिमम शेयर किसको मिला है, उसका डिफरेंस पूछा है। अच्छा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है ना रेशियो में, तो आप क्या करोगे ना कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमेशा ले लेना, उसको के ले लेना। इसका मतलब क्या है, एक्स को कितना अमाउंट मिलेगा, 1/2 के मिलेगा। मतलब इस के का मतलब क्या होता है ना, आप देखो, इस के हिसाब से ही हम मनी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये होता है कि एक प्रोपोर्शनली फैक्टर होता है, इस फैक्टर को जब भी हम इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। तो हमेशा अगर रेशियो वाला ऐसा कोई केस दिया है ना, तो आप हमेशा एक फैक्टर ले लो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लो, के ले लो। इसका मतलब एक्स का कितना हिस्सा आएगा, 1/2 के। अब के का नंबर क्या है हमको निकालना है। ओके, वाई को कितना मिलेगा, 3/4 के। जेड को कितना मिलेगा, 5/6 के। हमको नहीं पता है कितना मिलेगा ना, तो इसलिए तो हम अननोन लिए हैं के। अब के हमेशा सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि ये तीनों क्या है कि प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी सेम रहेगा ना। मतलब एक्स वाई जेड का अमाउंट इस प्रोपोर्शन में है। अनुपात का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन। इस प्रोपोर्शन पे 1/2 प्रोपोर्शन पे है, 3/4 प्रोपोर्शन पे है, 5/6 प्रोपोर्शन पे है। इसका मतलब कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकल के आएगा इक्वेशन से, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रोपोर्शन में, उसका एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, आपको पता है एक्स का जो अमाउंट होगा, जो शेयर होगा, जेड का जो होगा, वाई का जो होगा, मिला के कितना होगा, 2500 रुपये होगा ना। अभी हमने क्या निकाला, एक्स का शेयर कितना है, 1/2 के, वाई का कितना है, 3/4 के, और जेड का कितना है, 5/6 के, इज इक्वल टू कितना होगा, 2500। इक्वेशन बन गया आपका। क्या करोगे, के को कॉमन ले लोगे, कितना बच जाएगा, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 2500 के। एलसीएम पता है आपको, 2 4 कैसे ऐड करोगे, 2 4 6 का एलसीएम ले लोगे। ओके, सब हो गया ना अभी। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 लिखना, 2 12 6 आ जाएगा। 4 मतलब 3 × 3 9, 6 2 मतलब 2 × 5 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2500। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, के इज इक्वल टू 2500 इंटू 12/9 + 6 15, 15 + 10 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे काट दो, यहाँ पे हो गया 100, 100 12 हो गया 1200। मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको मैं ढूंढ रहा था ना, वो हो गया 1200। तो अभी हमको पता है एक्स को कितना मिलेगा, एक्स को मिलेगा 1/2 के। के का मूल्य कितना है, 1200 है, तो ये हो गया 600। एक्स को मिलेगा 600, वाई को कितना मिलेगा, 3/4 के। तो 3/4 इंटू 1200 कितना हो जाएगा,
300, 900। जेड को कितना मिल जाएगा? 5/6 के, मतलब 5/6 इंटू 1200 हो गया 1000। समझ गए? तो एक्स को मिला 600, वाई विल गेट 900, जेड विल गेट 1000। सो मैक्सिमम किसको मिला? जेड को। मिनिमम मिला एक्स को। तो डिफरेंस कितना हो गया? 1000 माइनस 600। 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400। देखो आंसर में क्या है, 400 है कि नहीं? हो गया आंसर 400। इसी को आप ना डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये मेथोडिकली मैंने बताया, मेथड वाइज। आपको पता है रेशियो कितना दिया है? 1/2:3/4:5/6। आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस होल नंबर पे कन्वर्ट करना है। आपको अभी बताया 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। तो हर जगह पे 12 मल्टीप्लाई कर दो। तो ये रेशियो का प्रॉपर्टी है, तो रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम हर, मतलब सेम नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हर रेशियो में, तो कुछ नहीं चेंज होगा। तो अभी देखो उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दो। 10 हो गया रेशियो अभी। इसका मतलब एक्स वाई जेड का, x:y:z, उनका जो शेयर का रेशियो कितना होगा? 6:9:10। तो अभी आपको पता है टोटल, टोटल मनी है 2500। तो एक्स को कितना मिलेगा? 2500 में उसका कितना शेयर होगा? उसका शेयर 6 पार्ट है, लेकिन टोटल पार्ट कितना है? 6 + 9 + 10 है ना। इसको 6 भाग मिलेगा, इसको 9, इसको 9 शेयर, इसको 10 शेयर। तो टोटल शेयर कितना होगा? 6 + 9 + 10, मतलब 9 + 6 15 + 25। ओके, तो आपको मिल गया डायरेक्टली 600। तो वाई में कितना हो जाएगा फिर? वाई का शेयर कितना हो जाएगा? सेम। आपको पता है टोटल में कितना है? टोटल 2500 डिस्ट्रीब्यूट करना है, वाई का शेयर 9 है, तो टोटल शेयर कितना है? 25। हो गया आपका 900 हो गया। जेड का कितना होगा? सिमिलरली जेड का शेयर है 10, तो 10/25 कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। तो डायरेक्टली आप कर सकते तो। ओके, सो डिफरेंस विल बी 400। आर यू गेटिंग? तो अभी हमने क्या सीखा कि मतलब you can solve also by this, okay, this method, okay, directly whenever this ratio will be given na, for your simplicity I am telling always take a proportionality constant, okay, then you multiply the constant with all the ratio, then you will be able to solve it very easily, whatever the method I showed you in the just before this answer. Okay, so today we have completed 5 question। आप लोगों को मैंने दिखाया कि हर क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, उसको एक एक करके सॉल्व किया, एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। आप अगर समझ समझ के करोगे, खुद से करोगे, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ है, थोड़ा बहुत समझने के लिए चीज है, आप अगर भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आई विल मेक यू रिकॉल ऑल द बेसिक थिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट। ओनली थिंग यू हैव टू पे अटेंशन एंड डू इट अगेन। ओके, सो see you in the next class with another 5 set of question. We will go chronologically. Okay, so see you. Thank you for listening. Okay, this PDF also I will share, don't worry.